اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ تحفظ عقائد کانفرنس اور جلسہ دستار بندی میں تشریف رکھتے ہیں۔ پیکر خلوص و وفا، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عمر صاحب قبلہ کا حکم فقیر آپ حضرات کی دہلیز تک حاضر آیا۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضور استاذ العلماء جلالت العلم حضرت علامہ مفتی نثار احمد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ اسلام کی مقدس بہو بیٹیوں سے میری گزارش ہے، صلی اللہ کا نغمہ دل پہ رقم کریں، واہ واہ کی بیٹیوں سے کہو شور کم کریں، واہ واہ۔ آپ حضرات آپ اپنی آوازوں کو پست کریں، ورنہ مفتی صاحب قبلہ آپ کو یہ مسئلہ بتائیں گے کہ ایک عورت قرآن عظیم کو کتنی آواز سے پڑھ سکتی ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کی تلاوت کی آواز گھر کی دیوار سے باہر نہ نکلے۔ تو جس اسلام نے عورتوں کی آواز کی اتنی حفاظت کی ہے، وہ اسلام عورتوں کی عزت کی کتنی حفاظت کرے گا۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ آپ کی وجہ سے ادھر پریشانی ہو رہی ہے، مائی کا پیٹر صاحب ایک دو وولیوم اگر آپ بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیجئے۔ یہ جو بچے سوئے ہیں، گرے پڑے لوگوں کو اٹھانا بہت ثواب کا کام ہے، انہیں اٹھا دیجئے۔ میں آپ کا مہمان ہوں۔ ارے میری ماں بہنوں، تم ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کی نیک بندیوں، جلسے میں آ گئی ہو تو کم سے کم خاموشی کے ساتھ بیٹھو، ورنہ علامہ حنیف صاحب بلبل بنگال رحمہ فرماتے تھے کہ جھوٹوں کا جب وہ مقابلہ ہوا تو سب سے بڑے جھوٹے نے کہا کہ 5 عورتیں بیٹھی تھی، سب خاموش تھی، تو ممتحن نے کہا فیصل لیں کہ یہی سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ 4 عورتیں بیٹھی ہوں اور خاموش رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام کی مقدس شہزادیوں آ گئی ہو تو تم بھی خاموشی کے ساتھ سنو، اور آپ آ گئے ہیں تو آپ بھی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے، افراتفری کا ماحول نہ بنائے۔ اے بیٹا، اے لڑکا، ذرا اسے دکھلائیے تو ادھر۔ ایسے بھی شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان قاعدے سے تقریر سنے، شیطان کو اس بات کا ڈر ہے کہیں کوئی مسلمان تقریر سن لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے،
ایسا نہ ہو کہ معذاللہ شرابی ہے تو شراب پینے سے توبہ کرنے والا ہو جائے، جواری ہے تو جوا کھیلنے سے توبہ کرنے والا بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہے تو ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرنے والا بن جائے۔ ایسے تو جلسے کا نام تحفظ عقائد کانفرنس ہے، آپ اس سے بیشتر کئی عظیم خطبائے اسلام سے آپ نے گفتگو سماعت کی، امید ہے تحفظ عقائد پر گفتگو ہوئی ہو۔ یقیناً اسلام جب بھی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے عقیدے کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے صاحب ایک درخت موجود ہو، درخت کی شاخیں کٹ جائے لیکن درخت کی ٹہنیاں کٹ جائے لیکن درخت کی جڑ اگر مضبوط ہے، اگر زمین سے اس کا رشتہ ہے، ممکن ہے اس میں شاخیں نکل پڑے، ممکن ہے اس میں پتیاں نکل پڑے، ممکن ہے اس میں پھول نکل پڑے، لیکن جڑ ہی اکھڑ جائے تو ہری شاخیں بھی مرجھا جائے گی۔ اگر جڑ ہی نکل جائے زمین سے، ہری پتیاں مرجھا جائے گی۔ ایسے ہی لوگوں، عقیدے اور عمل کا رشتہ ہے، عقیدہ عمل کا جڑ ہے۔ اگر جڑ کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط ہے، ہو سکتا ہے تیرے سجدے مقبول ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے قیام مقبول ہو جائے، ہو سکتا ہے تیری عبادتیں مقبول ہو جائے، ہو سکتا ہے تیری تلاوتیں مقبول ہو جائے۔ لیکن اگر تیرے عقیدے اور ایمان کا رشتہ آمنہ کے لال سے مضبوط نہیں ہے تو ایک نہیں کروڑوں سجدے کر لے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو سکے تو لائیں گے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے دے دیا۔ جتنے لوگوں کو اچھا لگا تھا وہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ اور ذرا صرف مرد اٹھائیں گے، عورتیں نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب مرد اٹھانا بند کر دیں گے تو عورتوں کو مجبوراً اٹھانا پڑے گا۔ افسوس تو اسی بات کا ہے، مرد جلسوں میں آتے ہیں، صاحب درخت کے نیچے بیٹھے گا، مرد جلسوں میں آئے گا سڑکوں پہ گھومے گا، مرد جلسوں میں آئے گا چائے کی ہوٹلوں میں رہے گا۔ صاحب یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہماری راتیں ٹورسٹ کی طرح کٹ جائے، یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے ہماری راتیں درختوں کے نیچے یوں ہی آپس میں گپ سپ میں گزر جائے، یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر عورتیں جلسوں میں آ گئی تو سیرت فاطمہ الزہرا سیکھ کر جائے گی، اور مرد جلسے میں آ گئے تو سیرت مصطفیٰ سیکھ کر جائے گی۔ تو جتنے لوگ سیکھنے کے موڈ میں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ جو آگے جگہیں خالی ہیں، ہاں ماشاءاللہ پیچھے والے بھی چاہیں تو آ کے بھر سکتے ہیں، آپ بھی چاہیں تو دو دو قدم کھسک سکتے ہیں، فیصلہ آپ کے اوپر ہے، میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ دو چار قدم آگے بڑھیے، ہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا، آپ لوگ بھی دو چار قدم، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں سے جہاں تک جگہ پائیے کھسکتے کھسکتے چلے آئیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ صاحب یہ سرزمین یہ علاقہ میرے امام کا علاقہ ہے، مرکز عشق و محبت کا علاقہ ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ و رضوان کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے عالموں سے بھی پیار ہے، اس علاقے کی مٹی سے بھی پیار ہے۔ صاحبوں یاد رکھنا، نبی کا ایک ایسا معجزہ جو آج تمہارے پاس موجود ہے، تم کہو گے مولانا اس معجزے کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا صاحبوں، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ دارالعلوم ہے، مدرسہ نور العلوم جس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں۔ آج پوری دنیا ہمارے خلاف سازشیں رچ رہی ہے، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ماس میڈیا آپ سمجھتے ہیں، ماس میڈیا فلمی دنیا کو کہا جاتا ہے، ماس میڈیا ہو، آج پوری دنیا تنہا جس سسٹم کے پیچھے پڑی ہے اس سسٹم کا نام مذہب اسلام ہے۔ ساری دنیا کے نشانے پر ہم ہیں، آج کوئی ہماری تبلیغ کو نشانہ بنا رہا ہے، آج کوئی ہماری تعلیم کو نشانہ بنا رہا ہے، آج کوئی ہمارے مدرسوں کو نشانہ بنا رہا ہے، آج کوئی ہماری داڑھی اور ٹوپی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صاحب حالات اتنے برے ہیں، بولنے والی زبانیں باقی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس مائیں نہیں جو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو
सिर्फ नाम से आबाद हो, ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी सिर्फ चादर और फातिहों से आबाद हो, ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी सिर्फ कुरान खानी से आबाद हो। नहीं साहब, आज जिंदगी में किरदार मुस्तफा की जरूरत है, आज जिंदगी में सीरत इमामी हुसैन की जरूरत है, आज औरतों की जिंदगी में सीरत फातिमतुल ज़हरा की जरूरत है। क्या बात है साहब कि आज मेरे इमाम ने लिखा, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, आज जिसे चाहा जो चाहा बोल दिया। साहब जिसने जो चाहा अटैक कर दिया और हमला कर दिया। आज किसी को कुरान पसंद नहीं, आज किसी को नमाज पसंद नहीं, आज किसी को दाढ़ी पसंद नहीं, आज किसी को हिजाब पसंद नहीं, आज किसी को नबी की सुन्नत पसंद नहीं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है गैरों को पसंद आए या ना आए, लेकिन सुल्तान रजा अपनों से पूछना चाहता है। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम उन्हें इस्लाम क्या समझाएं? आज जरूरत है अपनी कौम के बच्चों को इस्लाम समझाने की, आज जरूरत है अपनी कौम की बेटियों को इस्लाम समझाने की, आज जरूरत है अपने कौम के बेटों को इस्लाम समझाने की। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, आप कुरान पढ़ो कोई आपको रोकने वाला है, आप नमाज़ें पढ़ो कोई आपको रोकने वाला है? अरे बोलिए, कोई रोकने वाला है? हाथ उठाकर बोलिए, आप नमाज पढ़े कोई रोकने वाला है? आप कुरान पढ़े कोई रोकने वाला है? आप आज़ान दे कोई रोकने वाला है? लेकिन जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं रहूं न रहूं मेरी बातें आपको याद दिलाती रहेगी। साहिबों वो दिन दूर नहीं है जब भारत के पार्लियामेंट में कहा जाएगा फजर की आज़ानें बंद कर दी जाए, इशा की आज़ानें बंद कर दी जाए। पूछा जाएगा क्यों, तो ये कहेंगे इसलिए कि फजर की आज़ान होती है मगर मस्जिद में 2 से 4 मुसलमान ही नमाज पढ़ने जाते हैं। इशा की आज़ान होती है मस्जिद में 2 से 4 ही मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं। तरक्की याफ्ता जमाना है, हर घर में मोबाइल मौजूद है, लोग चाहे तो आज़ान की जगह अलार्म लगाकर और मस्जिद को पहुंच सकते हैं। 4 लोगों की वजह से 50,000 बस्ती के मर्द औरत की नींद को खराब नहीं किया जाएगा। ये मेरी कौम के लोगों, दौरे जदीद के एक शायर ने कहा था, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मस्जिदों से भागने वालों याद रखना, सिर्फ जलसों में नारा लगा लेने से मस्जिदें नहीं बचेंगी। सुल्तान रजा तुमसे कहना चाहेगा, मस्जिदों को आबाद करने से हमारी मस्जिदों की हिफाजत होगी। तुम चाहते हो कि आने वाले दिनों में कोई शख्स आज़ान के खिलाफ उंगलियां न उठाए, तो फजर की आज़ान हो तो इस्लाम की माँ तुम अपने घरों में मुसल्ला बिछाओ और अपने शौहरों को मस्जिद में सजदा करने के लिए ज़माना ये जान जाए। आज़ान सिर्फ बरकत के लिए ही नहीं होती, यही वो आज़ान है कि आज़ान होती है तो घर में औरतें नमाज पढ़ती है और मस्जिदों में मुसलमान बच्चे और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कितने लोग हैं जो कोशिश करेंगे कि हम फजर की नमाज में मस्जिदों में पहुंचे। जरा हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह सारे लोग, आप तो बड़े अमीर हो। एक बात मुझे बताओ साहब, बुरा मत मानना, आज अल्लाह ने आपको किस चीज की कमी दी है? बताओ आज हमारी मस्जिदों में कितने इंतजाम है साहब। गर्मी में जाओ तो एयर कंडीशन मौजूद है, ठंडी में जाओ हीटर और गीजर मौजूद है। साहिबों इतना इंतजाम कि अब का मुसलमान कोई कहे मस्जिद में तबीयत नहीं लगती। साहब वो जमाना सहाबा का था जब मस्जिद की छत चूती, मस्जिद के छत से पानी टपकता था, फिर भी सहाबा उस कीचड़ वाली जमीन पे अपनी पेशानी को झुका देते थे, अपनी पेशानी को रख देते थे। और से मेरी बात सुनिएगा, एक सहाबी रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कितने वक्त की? ना 5 उंगलियां उठाकर बोले कितने वक्त की? कितने वक्त की? अच्छा साहब, ये जलसा चूंकि तहफ्फुज़े अकायद कॉन्फ्रेंस है तो 4-5
मिनट बोलकर हक अदा कर लेने दीजिए, वरना अपने इमाम को भी मुंह दिखलाना है। मेरे इमाम ने जमाने को दर्से वफा दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, और से सुनिएगा, बात नमाज की चल रही है। सहाबी रसूल है, आका के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। 4 वक्त की नमाज पढ़कर आका के साथ 4 वक्त की नमाज के बाद दुआ में हाजिर होते, मगर फज्र की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद फौरन सहाबी रसूल उठते और अपने घर को चले जाते। एक दिन सहाबे कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरखास्त पेश की, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी है 4 वक्त की नमाज के बाद दुआ में शामिल रहते हैं, मगर फज्र की नमाज के बाद दुआ में शामिल नहीं रहते। या रसूल अल्लाह, पूछा जाए आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है। आज कौनैन के ताजदार आका जानते थे, आका तो दिलों के राज को जानने वाले हैं। मेरे इमाम ने हमें अकीदा दिया, मैं कहता हूँ सारे एहसानात को एक तरफ रखो और बरेली के इमाम के एहसान को एक तरफ रखो। कसम खुदा की, उनके इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे दिलो दिमाग को रोशन किया, उन्होंने हमारे क़ुलूब को इसके मुस्तफा के चराग से रोशन किया, उन्होंने हमारी खानकाहों को अज़मत औलियाए कराम के चराग से रोशन किया। मैं तो कहता हूँ साहब, पूरी जिंदगी हम उनका गुन गाए फिर भी कम है, लेकिन आज कुछ लोगों को इस बात से परेशानी है, जिन्हें है उन्हें होने दीजिए। आप जिस स्तर पर है वहां पड़े रहिए, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने कुर्राने वाले। और से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। मेरे इमाम ने जमाने को दर्स दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी को कैसे खबर न होगी कि मेरा आशिक, मेरा सहाबी क्यों सलाम के बाद चला जाता है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी खड़े हो जाओ, ये तुम्हारे साथी तुमसे पूछना चाहते हैं, आखिर फज्र की नमाज के बाद फौरन घरों को क्यों चले जाते हो। सुन्ना इस्लाम की मुकद्दस माँ, तेरे घर पे इतनी गरीबी नहीं आई है, ये उस गरीब मुसलमान की कहानी है जिनके किरदार से इस्लाम जिंदा हुआ है। ये उन गरीब सहाबा की कहानी है जिन्होंने इस्लाम को पूरे जमीन पर फैलाया है और पहुंचाया है। सुनना जरा गौर से, सहाबी रसूल खड़े हो गए। फज्र की नमाज के बाद आका ने कहा, ठहर जाओ, तुम्हारे साथी जानना चाहते हैं कि तुम आखिर फज्र की नमाज के बाद घर क्यों चले जाते हो। आंखों में आंसुओं के कतरात है, सहाबी रसूल खड़े हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका, आज मेरा राज खुल जाएगा, आज मेरे साथी साथी मेरी बात को जान जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मामला ये है, मेरे घर में एक ही कपड़ा है और आका 5 वक्त की नमाज में 4 नमाजों का वक्त लंबा होता है, इसलिए मैं नमाज पढ़ने के बाद, जमात से नमाज पढ़ने के बाद आका जी दुआ के लिए ठहर जाता हूँ, लेकिन फज्र की नमाज के बाद वक्त बहुत कम रहता है। एक आका, मेरे घर में एक ही कपड़ा है जिसे मैं पहन कर आता हूँ तो मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, और घर जाकर उस कपड़े को खोलता हूँ तो मेरी बीवी उसी कपड़े को पहनकर खुदा की बारगाह में सजदा करती है। ए आका, मुझे डर सा इस बात का खौफ होता है कि फज्र की नमाज के बाद दुआ मांगूं तो कहीं मेरी बीवी की नमाज कज़ा ना हो जाए, कहीं मेरी शरीके हयात खुदा की बारगाह में उसके सजदे कज़ा ना हो जाए। सुल्तान रज़ा आज इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों से पूछना चाहता है, उनके घर में तो एक ही कपड़ा था, मगर बीवी घर में नमाज पढ़ती थी और शौहर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता था। बताओ क्या कौन सा मुंह लेकर खुदा की बारगाह में जाओगे। क्या कुरान ने नहीं कहा, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बता तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। रब्बे कदीर तुझसे पूछेगा, बता गर्मी के लिए मस्जिद में इंतजाम था तू क्यों नहीं आया, ठंडी के लिए मस्जिदों में इंतजाम था तू क्यों नहीं आया।
चाहती के लिए उस ठंडी में वजू करने के लिए तेरे घर में गीजर मौजूद था, तुमने वजू क्यों नहीं किया? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, इस्लाम की बका चाहती हो, तुम चाहती हो इस्लाम यूं ही फले फूले तो सिर्फ जलसों में नारे लगाने से या सिर्फ फातिहा ही करा लेने से इस्लाम जिंदा नहीं होगा। फातिहा भी कराओ और सीरत सहाबा को अपनी जिंदगी में भी बसाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहब-ए अकाइद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सरजमीन मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अब साहिबो याद रखिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, नबी का एक ऐसा मोजेजा जो आज हर जगह मौजूद है, उस मोजज़े का नाम है कुरान। नबी का ये ऐसा मोजेजा है जो हर जगह मौजूद है। आलिम के पास कुरान है, जाहिल के पास कुरान है, मदरसों में कुरान है, खानकाहों में कुरान है, मस्जिदों में कुरान है। ओए लाल टी शर्ट, खैरियत, कहाँ जा रहे हो? जलसा खत्म हो गया? माशाअल्लाह, बेचारा जरूरत से जा रहा है। ऐसे भी जाने वालों को कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है जाने वालों को? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, थोड़ी देर इत्मीनान सुकून के साथ बैठिए, इंशाअल्लाह जलसे से जाओगे, कुछ लेकर के जाना जरूरी है। कल होकर तेरी माँ ने अगर तुझसे पूछ दिया कि बता मेरे बेटे तूने जलसे में क्या सीखा है, कह देना अल्लामा तौसीफ रजा ने ये बताया, हमें दर्श दिया कि साहब आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। गौर से मेरी बात सुनना, दुनिया में नबी का एक ऐसा मोजज़ा है कुरान जिसकी अजमत सारी दुनिया में मौजूद है। लाइब्रेरी किसी की हो मगर कुरान उसके पास मौजूद है। साहब अमेरिका की लाइब्रेरी हो, चाइना की लाइब्रेरी हो, रशिया की लाइब्रेरी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा किताबें तो दुनिया में बहुत है और किताबें बहुत लिखी गई। बच्चों के लिए अलग किताब, नौजवानों के लिए अलग किताब, बूढ़ों के लिए अलग किताब, औरतों के लिए अलग किताब। ऐसा नहीं होता कि साइंसदान जो किताब पढ़े वो इंजीनियर भी पढ़े, इंजीनियर जो किताब पढ़े वो डॉक्टर भी पढ़े, डॉक्टर जो किताब पढ़े वो प्रोफेसर भी पढ़े। ऐसा नहीं होता, लेकिन कसम खुदा की ऐसी कोई किताब लाओ कि साहब बच्चा नर्सरी का हो फिर भी पढ़े, बच्चा मैट्रिक का हो फिर भी पढ़े, बच्चा इंटर का हो फिर भी पढ़े, बच्चा डॉक्टरियत का हो फिर भी पढ़े। आप कहेंगे नहीं मौलाना, नर्सरी के लिए अलग किताब है, यूकेजी एलकेजी के लिए अलग किताब है, मैट्रिक के लिए अलग किताब है, इंटर के लिए अलग किताब है, डॉक्टर के लिए अलग किताब है, प्रोफेसर के लिए अलग किताब है, साइंसदान के लिए अलग किताब है, ज्योग्राफी दान के लिए अलग किताब है। मैंने कहा इतनी किताबों का बोझ ढोने वाले एक ही किताब लिख दो। कहा नहीं मौलाना, ऐसी कोई किताब नहीं जिसे बच्चा भी पढ़े, जिसे जवान भी पढ़े, जिसे डॉक्टर भी पढ़े, जिसे इंजीनियर भी पढ़े, जिसे प्रोफेसर भी पढ़े, जिसे साइंटिस्ट भी पढ़े, जिसे मर्द भी पढ़े, जिसे औरत भी पढ़े। मैंने कहा कोई किताब नहीं मगर मेरे नबी का मोजेज़ा कुरान एक ऐसी किताब है। बच्चे को देखो पढ़कर मुस्कुरा रहा है, जवान को देखो पढ़कर मुस्कुरा रहा है, डॉक्टर को देखो पढ़कर मुस्कुरा रहा है, प्रोफेसर को देखो पढ़कर मुस्कुरा रहा है, साइंटिस्ट को देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रहा है, औरत को देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रही है, बहू को देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रही है, आलिम को देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रहा है। आलिम तो आलिम, जाहिल को भी देखो कुरान पढ़कर मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा हो साहब, आलिम तो कुरान समझ रहा है इसलिए मुस्कुरा रहा है, मगर तुम तो जाहिल हो, तुम कुरान लेकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोल पड़ा ए सुल्तान रज़ा, तुझे पता नहीं है दुनिया में जितनी किताबें हैं उसे सिर्फ पढ़ने वाला कामयाब होता है, लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि जाहिल भी कुरान को उठा ले तो उठाए तो उठाना सवाब है, देखे तो देखना सवाब है, और कुरान को सुने तो कुरान का सुनना, सुभान अल्लाह, कुरान का सुनना सवाब है। अब किताब एक ही सबके लिए बराबर है। नर्सरी वाला कुरान पढ़ रहा है, पीएचडी वाला कुरान पढ़ रहा है, डॉक्टर साहब कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर
पूछना चाहूंगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जरा सीने पे हाथ रख करके बताओ, आज कुरान से दूरी की वजह क्या है? आज हम कुरान से इतना दूर क्यों है? मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो साइंस की बोली बोलते हैं, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा कुरान बरकत के लिए पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ूंगा मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैंने कहा साहिबों, नकीब अहले सुन्नत से मैंने कहा हुजूर क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है कि डॉक्टर की किताब मैं पढ़ूं और डॉक्टर आप बन जाए? प्रोफेसर की किताब मैं पढ़ूं, प्रोफेसर आप बन जाए? इंजीनियर की किताब मैं पढ़ूं, इंजीनियर आप बन जाए? ऐसी कोई किताब है कि मैं पढ़ूं और फायदा उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब किबला को हो जाए? हजरत ने कहा सुल्तान रज़ा ऐसा नहीं होता कि किताब मैं पढ़ूं डॉक्टर आप बनो, किताब मैं पढ़ूं इंजीनियर आप बनो, किताब मैं पढ़ूं प्रोफेसर आप बनो। मैंने कहा हुजूर नहीं होता, मगर हजरत ने कहा सुल्तान रज़ा कुरान ऐसी किताब है, ऐसी किताब कि पढ़ता जिंदा है, अगर में मुर्दों को जन्नत की जमानत मिलती है। पढ़ता बेटा है, फायदा बाप को पहुंच जाता है, पढ़ता बेटा है, फायदा माँ को पहुंच जाता है, पढ़ता बेटा है, फायदा खानदान को पहुंच जाता है। एक बच्चा मदरसा नूरुल उलूम का कुरान सीने में बसाता है, पूरा इलाका उसकी तिलावत से बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत नबी का ये ऐसा मोजेज़ा। बहुत सुनिए साहिबों, मैं वो नहीं आपके जज्बात के साथ कुछ देर खेल कर चला जाऊं, और से मेरी बात सुनिएगा, बात समझ में आएगी। अल्लाह अल्लाह मेराज की शब है, आमिना के लाल है, आराम फरमा रहे हैं, सिदरा के मकीन रूहुल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं। याद रखिएगा, अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, फरिश्ते मासूम अनिल खता होते हैं, फरिश्तों से कोई गलती नहीं होती है, न जानबूझकर न अनजाने में। फिर रूहुल अमीन से गलती हो जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है। किताबों में आता है सिदरा के मकीन है, अल्लाह 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 के नबी को खुदा का मेहमान बनाकर लेकर जाने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह आ गए, देखा महबूब आराम कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह सुनो, अदब सीखो अदब, ये वही जिब्रील अमी है। उठाइए बुखारी शरीफ, नबी के सामने ज़ानवी अदब तय करके बैठे हैं और बैठकर सहाबा को इस्लाम सिखला रहे हैं। ये वही जिब्रील अमी है। उठाओ हदीस की किताबें, ये वही जिब्रील अमी है जो सिदरा से बार बार नबी की बारगाह में आ रहे हैं। ये वही जिब्रील अमी है जो कभी मक्के में कुरान लेकर आ रहे हैं, कभी मदीने में कुरान लेकर आ रहे हैं। जिब्राइल अगर मक्के और मदीने में कुरान लाए, मानने में लोग प्रॉब्लम, तो जिब्राइल नबी की बारगाह का अदब सिखलाए तो मानने में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मानने में परेशानी क्यों हो रही है? पूछिए, हमारे बुजुर्गों ने बताया है, जिब्रील अमी आते हैं, देखा महबूब आराम कर रहे हैं, कहा नाम लेकर जगाऊं तो बेअदबी है, हाथ पकड़ के जगाऊं तो बेअदबी है, अल्लाह अल्लाह आका को अगर नाम लेकर उठाऊं तो बेअदबी है। अदब क्या है? मेरे इमाम से पूछिए, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या? मेरे इमाम ने लिखा, पेशे नजर ओ नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। पेशे नजर ओ नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। मगर जिब्रील अमीन है। अब जिब्रील अमीन अपनी पेशानी को, साहब जिस्म के सबसे अजीम हिस्से का नाम पेशानी है, ये पेशानी हर जगह नहीं छुपती, खुदा की बारगाह में छुपती है। जो पेशानी खुदा की बारगाह में छुपे, इस पेशानी को जिब्रील अमीन ने नबी के सलाम से लगा दिया है, मालना शुरू कर दिया है। जमाने को बता रहे हैं लोगों, जहां जिब्राइल की पेशानी की अजमत खत्म होती है, वहां से रसूलुल्लाह के तलबे की अजमत शुरू होती है। इस बारगाह में आना तो बेअदब बन के ना आना, इस बारगाह में आना तो बाअदब बन करके आना। जिब्रील अमी ने नबी की बारगाह का ये मकाम बता दिया। लोगों, ये जिब्रील
ने सजदा कर लिया। एक बार का वाकया है, मैं अपने इलाके में पूरा उधर बिहार में किशनगंज के इलाके में जलसे में जा रहा था। मौलवी जर्जीस साहब का एक चेला मिल गया। उसने कहा सुन्नी लोग बहुत शिरक करते हैं। मैंने कहा कौन सी शिरक सुन्नी करते हैं, मुझे एक शिरक बताओ। कहा मस्जिद अल्लाह का घर है। मैंने कहा बेशक है। कहा अल्लाह के घर में सलाम पढ़ना ये शिरक है। मैंने कहा अच्छा, अल्लाह के घर में सलाम पढ़ना शिरक है। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहा पढ़ते हैं। मैंने कहा नमाज में तहियात पढ़ते हो? कहा पढ़ते हैं। मैंने कहा तहियात सुनाओ, तहियात सुनाओ। आप भी मुनाजिर बन जाइए, तहियात सुनाओ। सुनाना शुरू किया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन इला आखिर। मैंने कहा ठहरो, तर्जमा। अब शुरू किया। जानी माली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। वस्सलामु अलैना, हम सब पर सलाम हो। वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। मैंने कहा बताओ ये सलाम नमाज के अंदर पढ़ते हो कि नमाज के बाहर पढ़ते हो? कहा नहीं मौलाना पढ़ते तो अंदर है। मैंने कहा बताओ देवबंदी पढ़ता है? कहा पढ़ते हैं। अहले हदीस पढ़ता है? कहा पढ़ते हैं। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ जब नमाज के अंदर सलाम पढ़ना शिरक नहीं है तो नमाज के बाहर खड़े होकर या नबी सलामो अलैका पढ़ना शिरक कैसे है? अरे बेवकूफ पगले, तुझे पता नहीं है जब अल्लाह को बगैर सलाम वाला सजदा पसंद नहीं है, नमाज पसंद नहीं है, तो बगैर नबी की मोहब्बत वाला मुसलमान कैसे पसंद होगा? ये साहिबो याद रखिए, किसी पर बहकाने के चक्कर में नहीं आना है। कल से कोई कहे सलाम का सबूत, वलियों पे सलाम का सबूत, कह दीजिए नमाज पढ़ते हो वलियों की मोहब्बत से इनकार करते हो। बगैर वलियों पे सलाम पढ़े, बगैर नबियों पे सलाम पढ़े, बगैर अपनों पर सलाम पढ़े, जब नमाज मुकम्मल नहीं होती तो एक मुसलमान की जिंदगी कैसे मुकम्मल बन? अरे बोलिए होगी? होगी? दोनों हाथों को उठाकर बोले कभी नहीं होगी। याद रखिएगा जिब्रील अमीन ने ये तरीका बताया। रात पर नबी सवार हुए अक्सा में। अच्छा ये बताइए आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? कोई घबराहट? देखिए जब तकरीर खत्म करने का इरादा हो या कराने का, नो प्रॉब्लम, बस एक बार खड़े होकर नारा लगा दीजिएगा मैं खत्म। माशाअल्लाह इजाजत है बोलूं? है ना? माशाअल्लाह हजरत जब बैठे हैं तो मेरा वो 4 मिसरा मुझे पढ़ना बहुत महबूब है, कभी कभी पढ़ लेता हूँ। वो नात जो नबी की बारगाह में मकबूल है और जो रात की तन्हाई में इमाम मोसीरी पढ़ा करते थे। बलगल उला बेकमालिही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने का शर्फ हासिल किया इसलिए कि मैं जानता हूँ ये नात बारगाहे रिसालत में मकबूल है। और से
सुनिएगा, अब मेराज की शब है, आका बुराक पर सवार हुए, पहला सफर जो शुरू हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अक्सा में आका की सवारी पहुंचती है, आका अपने बुराक को बांधते हैं, मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। जो ही दाखिल हुए हजरत आदम पहले से मौजूद, हजरत इब्राहिम पहले से मौजूद, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा सारे अंबिया हाथ बांधे खड़े हैं, सफ बांधे खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह क्या इमाम का इस्तकबाल है। गौर से सुनिएगा, सिर्फ वाकया सुनाना मकसद नहीं है। आज कौन है जो इमाम की इतनी ताजीम करे? सिर्फ मेरा सुनने वालों, तुम भी तो मुक्तदी हो, क्या तुम भी कभी अपने इमाम की ताजीम के लिए खड़े होते हो? लेकिन ये देखो हजरत आदम है, ये देखो हजरत इब्राहिम है, ये देखो हजरत मूसा है, ये देखो हजरत ईसा है, ये देखो हजरत जकरिया है। इमाम इमामत के लिए आ रहा है, मुक्तदी इमाम की ताजीम के लिए हाथ बांधे खड़े हो। ईमानदारी से बताइएगा, मेराज इमाम का रुतबा भी बता रहा है, मुक्तदी को इमाम का अदब भी सिखला रहा है। पढ़ने वालों, मेराज को सिर्फ मोजेजा ही मत समझो, मेराज मोजेजा भी है और मेराज अदब और बंदगी का तरीका भी बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इसलिए तेरी जिम्मेदारी बनती है, जब तेरी कौम का इमाम उस्तादुल उलमा अल्लामा मुफ्ती निसार साहब की शक्ल में आए, कहीं बैठो देखो हजरत आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। तेरी मस्जिद का इमाम आए, फौरन खड़े हो जाओ। तेरी कौम के ये उलमा जो इमाम और रहबर है, ये आए ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। ये ताजीम का तरीका किसी और ने नहीं बताया, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने बताया। सुभान अल्लाह। आपको जितना पहनाना है पहनाइए कोई, लेकिन आप लोग मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ इधर देखिए। माशाअल्लाह, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस अमामा और दस्तारे हिफ्ज़ समझते हैं, कल तक तालिबे इल्म थे, अब कौम के इमाम बन गए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं बुरा मत मानिएगा, आजकल मदरसे से बच्चे फारिग होते हैं और एक ही रात में इतनी सेल्फी लेकर तस्वीरें फेसबुक पर भर देते हैं कि उनसे पूछिए कि जवाज की सूरत क्या है, क्या रुखसत कितना है। साहब पूछिएगा, कसम खुदा की पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने अपने भाइयों से भी पूछा, फारिग हुए और आकर के तस्वीरें अपलोड कर दिए, कहाँ हो? भूल गए मुफ्ती आजम हिंद के किरदार को, भूल गए सूफी दीन और मिल्लत हजरत अल्लामा सूफी निजामुद्दीन साहब के किरदार को। बुरा मत मानिएगा, हम लोग सिर्फ जलसा, चालीसवां, चहल्लुम, फातिहा, मज़ार, चादर तक ही सिमट के रह गए हैं। मैं कहना चाहूंगा, इससे ऊपर बढ़िए, चादर भी चढ़ाइए, बुजुर्गों के किरदार को भी अपनाइए। बताओ हजरत आदम हम सब के बाप है कि नहीं है? अरे बोलिए हाथ उठाकर, हजरत आदम कौन है? हमारे बाप है, मगर हमारे नबी के भी बाप है। लेकिन जब आका इमाम बनकर आ गए, आका इमाम बनकर आ गए, एक बार भी आदम ने नहीं कहा मेरा बेटा आ रहा है, मैं क्यों खड़ा हो? हजरत इब्राहिम तो जद्दे आला थे। आज अगर मुफ्ती निसार साहब आ गए, लोग कहेंगे मेरे गांव के हैं, मेरे ही मुफ्ती साहब हैं, मेरे खानदान के हैं, भागो हम इतनी ताजीम क्यों करें? मगर सुनो, ये तरीका अंबिया ने बताया है। साहब वाकया सुनाना मकसद नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सारे अंबिया हाथ बांधे खड़े हैं। आका मस्जिद अक्सा में इमामत फरमा रहे हैं। नबी की शान ये कि आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया नबी की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए। कभी तो मेरे इमाम ने लिखा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। मगर अब जो मैं तकरीर को मोड़ रहा हूँ, इसे नौजवानों ये तेरे लिए है। अगर तुमने इसे सुन लिया, इसे दिल में बसा लिया, सुल्तान रज़ा का आना भी वसूल हो जाएगा, अल्लामा उमर साहब किबला का बुलाना भी वसूल हो जाएगा। गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, जिस नबी की शान ये
शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा के झुरमुट में आका बैठे हैं, इतने में एक मुकद्दस खातून, एक पाकीज़ा औरत मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है। कौनैन के ताजदार की नजर पड़ी है, जो ही आका की नजर पड़ी फौरन मुस्तफा जाने रहमत ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, उस औरत के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा हाथ बांधे अर्ज करते हैं, फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ये मेरे आका आपकी शान तो ये कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हो, मगर ये कौन मुकद्दस खातून है, ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन पाकीज़ा महिला है जिसकी ताज़ीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है, मेरा रसूल खड़ा है, इमामुल अंबिया खड़ा है, इमामुल रसूल खड़ा है। मेरे आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा जानना चाहते हो तेरा पैगंबर किस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह बतला दिया जाए। आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो, मैं जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ ये औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिसकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा हो गया है, रसूल खड़ा हो गया है। सुभान अल्लाह, आपसे पूछना चाहता है, सीने पे हाथ रखकर बताओ मेरी कौम के नौजवानों, नारे तुमने बहुत लगा लिए, फातिहा तुमने बहुत किए साहब, लेकिन सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, ईमानदारी से बताओ तेरा नबी तो मस्जिद नबी में दूध पिलाने वाली माँ की ताज़ीम के लिए खड़ा है, क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की इस्तकबाल के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपनी बूढ़ी माँ की इज्जत के लिए खड़े होते हो? आज हमारी पोजीशन ये है, हम चारपाई पे बैठे हैं, माँ नीचे बैठी है, बेटा चेंबर में बैठा है, बाप नीचे बैठा है, बेटा साहब ऊंची कुर्सी पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, ए मेरी कौम के नौजवानों, बताओ नबी की सुन्नत को गले से लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मगर कौनैन के ताजदार सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, बल्कि आका अपनी नूरी चादर को कांधे से उतारते हैं, मस्जिद नबवी के फर्श पर बिछाते हैं और आका अर्ज करते हैं अम्मी जान आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। दो चीजें बता रहे हैं, एक माँ के लिए बिस्तर भी बिछाना, एक माँ की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। आज के इस जलसे से मदरसा नूरुल उलूम में आने वाले ये पैगाम लेकर जाओ, अपने घरों को जाओगे, तू भी बैठा है, तेरे बगल में तेरी बीवी भी बैठी है, तेरे बगल में तेरे बच्चे भी बैठे हैं, और तेरी बूढ़ी माँ या तेरा बूढ़ा बाप तेरी निगाहों के सामने आ जाए, कसम खुदा की फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। बीवी और तेरे बच्चे तुझसे पूछेंगे